People say that even if the government tries to bring them out of the slums, they want to stay in the slums. It's one thing to talk about electricity bill in condominiums in expensive Gurugram. It's another to talk about electricity bill for lift in flats in Ashok Vihar for slum dwellers. क्या करप्शन की वजह से वो पॉलिसी नहीं आई या पॉलिसी की वजह से करप्शन है? Corruption itself is an outcome Of wrong policy. of wrong policy. For the existence of slums, there is another story apart from supply of cheap houses is that job opportunities. लोग migrate करके इन्हीं cluster cities में जाके slums में जाके रहते हैं because वो बोलते हैं वहाँ पे land तो है हमारे पास पर वो खेती करने के लिए भी तो पैसे चाहिए तो वो कहाँ से आएंगे तो ज़मीन है पर खाने को पैसा नहीं है. So that is also another reason कि people move to the cities और वो slums में रहते हैं. They have big spaces at least in their rural areas. So do you think, because it just came to my mind कि that is also another factor and job creation, job opportunities, that is another fallback जहाँ इंडिया अभी कर नहीं पा रहा है कुछ अच्छा. So वो aspect related to slums, can you please explore? I'm very glad you asked this question. So there are two comparisons that you can make. One is दिल्ली के स्लम्स की डेमोलिशन के केसेस हम सब देख रहे हैं जहां बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए. अब क्या वो घर सच में घर थे या नहीं, इसका जवाब है नहीं. जिन घरों में या जिन स्लम्स में ये लोग बहुत सालों से रह रहे थे उसकी डेमोलिशन के बाद जो कंडीशन है उन लोगों की वो बहुत बुरी है. अब ऐसे स्लम्स की एग्जिस्टेंस हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा है क्यों? क्या उसका रीजन हाई रॉकेटिंग हाउसिंग प्राइसेस है? नहीं, उसके सेवरल रीजंस हैं और बहुत सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जो हमारे आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किए हैं with eminent economist Dr. Gurbachan Singh. Dr. Singh has dived deeper into the issue of the existence of slums, जो कोई भी चैनल डिस्कस नहीं कर रहा. आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए see you in the podcast. So 50% of our urban population is living in slums. That is the data. So there is a loop of violation of rules, regularization, and then demolition. Slums ka. What is the root cause behind it? it's a long story. So step by step. So first, वो जो nearly 50% of the urban population है, it is a very high figure. But I would also like to add that in India, in any case, urbanization is low. So 35% of the population lives in urban India. So if you take 50% of that 34%, it is 17% of the Indian population, which is also very, very high. But I just wanted to put that in perspective. So this is not to say कि problem नहीं है. Problem is very serious and it is internationally high because if you consider urban to urban, then again we are doing very badly. So that stylized fact is true. The other part about corruption, so there is corruption, there is harassment. बट इसमें एक चीज़ को ध्यान देना है कि कोई चीज़ों में इंडिया में करप्शन नहीं है या बहुत कम है. जैसे सर? जैसे आप बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर करते हो या शर्ट्स बेचते हो या कोई गाड़ी वर्कशॉप चलाते हो या कार मैन्युफैक्चरिंग है. Except for some things, by and large, there is minimal corruption there. But there are some other places where the corruption is very high, the harassment is very high. Now, we have to make that the starting point. कि corruption is an all-India phenomenon, but it's not an all-sector phenomenon. Okay? This is interesting. हाँ, so अब बात यहाँ आ जाती है कि why is it that some sectors have more corruption than other sectors? So I will not say कि it is zero versus very high. Let's say it's a continuum. Let's say it's low corruption in some sectors and high corruption in some other sectors. तो बात यहाँ आ गई कि ऐसा क्यों है? Is it that the regulators who are sitting in one place are more corrupt than the regulators or inspectors sitting in another place? That's not the story. What then is the story?
It's a story of policy. So you have one policy governing one sector, you have another policy governing another sector. जहाँ पर आपकी पॉलिसी अच्छी है, ठीक ठाक है, वहाँ स्कोप कम हो जाता है करप्शन का. और जहाँ आपकी पॉलिसी फॉल्टी है टू बिगिन विद, वहाँ स्कोप आ जाता है करप्शन का. तो ऐसा नहीं है कि करप्शन किसी डिपार्टमेंट के या किसी इंस्पेक्टर के या किसी यूज़र के ब्लड में है. एंड करप्शन इज नॉट एक्सोजेनस, टू यूज़ एन इकोनॉमिक्स टर्म. इट इज़ नॉट कि यहाँ है और यहाँ इनएविटेबल है या नेचुरल है. देयर इज़ नो सच थिंग एज नेचुरल और इनएविटेबल. इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिसी. मैं आपको एक और थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूँ. हमने पहले पॉडकास्ट में भी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट है. 1991 से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी करप्शन होती थी. एट द लाइसेंस स्टेज, एट द रिटेल स्टेज, दोनों होता था. अब ना लाइसेंस स्टेज पे है ना रिटेल स्टेज पे है, बिकॉज पॉलिसी वॉज चेंज्ड. देयर वाज लिबरलाइजेशन. द पॉलिसी वॉज आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग मिनिमल. आपको गाड़ी प्रोड्यूस करनी है, आप बनाओ, आप बेचो. एंड देयर इज कंपटीशन अमंग्स द मैन्युफैक्चरर्स, देयर इज कंपटीशन अमंग्स डीलर्स, एंड द कंज्यूमर कैन चूज. तो वो करप्शन का स्कोप ही निकल गया था. बट अब कुछ सेक्टर्स हैं, हाउसिंग, स्लम्स, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, इन सब में देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी, देयर इज अ लॉट ऑफ हरासमेंट. बट इसका रूट कहीं और है, गंगोत्री कहीं और है, और वो है पॉलिसी. तो अभी क्या हो रहा है, जो दिल्ली में डिमोलिशंस हो रहे हैं, टू सम एक्सटेंट गुड़गांव में भी हो रहे हैं, एंड एनीवे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है नाउ एंड देन. तो उस टाइम पर ये बात उठती है, डिबेट होता है कि ये करप्शन है, ये स्लम्स के लोग जाएंगे तो करेंगे क्या. बट वो बात आ जाती है पॉलिसी पर कि ऐसी पॉलिसी क्या है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. क्या पॉलिसी है सर, क्या लूपहोल है पॉलिसी में? पॉलिसी है रिस्ट्रिक्टिव. और यहाँ पर जो पॉलिसी इशू है फॉर स्लम्स या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, वो पॉलिसी इन जनरल है फॉर हाउसिंग, एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है जिसके अंतर्गत सप्लाई बहुत कम है. तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि कुछ ही लोग हैं जो लीगल हाउसिंग अफोर्ड कर सकते हैं. बट रहना तो सबको है, तो वो फिर कहाँ रहेंगे. जो अप्रूव्ड एरिया है या जो अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन है वो सीमित हो गई कुछ लोगों के लिए, तो बाकी का रहना मुश्किल है. बट अब ये बात पॉलिटिशियंस भी समझते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं, जजेस भी समझते हैं, सबको ये बात पता है कि रहने की वी यू ऑल्सो नीड द पीपल फॉर वेरियस सर्विसेज, चाहे वो लोअर लेवल पे हो या मिडिल लेवल पे हो. हायर लेवल पे तो खैर दे कैन अफोर्ड लीगल हाउसिंग. बट द नॉर्म इज, बाय द वे, जो आपने इनिशियली बात की ना 50% लिविंग इन स्लम्स, सो व्हाट डज इट शो, दैट हाफ इज इलीगल. और ये तो सिर्फ स्लम्स हैं. जो अगर आप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात करो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस की बात करो, वो स्लम्स नहीं है. वो उनके, दे आर वेल टू डू पीपल, दे हैव गुड फैसिलिटीज, दे हैव कार्स, बट उनका हाउसिंग इज़ नॉट फुली लीगल. वो भी उनको भी एक डर लगा रहता है कि कल को कुछ भी होगा. अभी इनफैक्ट मेरोली के कुछ एरियाज़ में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में, वहाँ भी जेसीबी बुलडोज़र वगैरह आए थे, कुछ तोड़ फोड़ वहाँ भी हुई है. तो ये वहाँ भी चलता है. ये स्लम वाले लोग नहीं हैं, बट इन पर भी चलता रहता है. तो 10, 15, 20% इसके एस्टिमेट्स अलग अलग हैं. तो अगर आप समझो कि 20% अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या इन वॉट एवर फॉर्म, तो देन दैट मीन्स सिर्फ 30% हैं इंडियन सिटीज़ में जो लीगल हाउसिंग में हैं. और वो भी, जिसको मैं लीगल कह रहा हूँ, वहाँ भी माइनर वायलेशंस तो इंडिया में आम बात है, तो उसको चलो छोड़ देते हैं. बट व्हाट इट मीन्स इज के 30% तो माइनॉरिटी हुआ ना कंपेयर टू 70%. तो दैट मीन्स दैट द मेजॉरिटी स्टेज इन
illegal housing in one way or another, and it's only the minority of 30% which stays in legal. That is the scale of the problem. अब उसका जो रूट है, बात ये नहीं है कि बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बात ये नहीं है कि ये इनको शिफ्ट करोगे तो कहाँ करोगे, बात ये नहीं है कि ट्रैफिक मूवमेंट से ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, सेफ्टी है कि नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है, बारिश के टाइम पर पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो आउटलेट्स नहीं है यमुना रिवर तक, वाटर ट्रीटमेंट का, ये दिस इज़ ओनली द मोर विजिबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. जो गंगोत्री है इन चीज़ों की, वो है हाउसिंग पॉलिसी, वो है अर्बनाइजेशन की पॉलिसी. उसमें देर आर एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस. तो हो क्या रहा है कि पॉलिसी है ऑफ एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस, और उसका एक आउटकम होता है, और वो डिबेट चलता है फिर उस आउटकम के इर्द गिर्द, उसके आसपास, और वो बात रह जाती है कि पॉलिसी में क्या दिक्कत है. तो ये यहाँ तक है कि स्लम्स वाले लोग भी जो हैं, वो भी ये सवाल नहीं पूछते कि अगर मैं एक सेल फ़ोन अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं एक साइकिल अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर मैं शर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये घर की क्या बात हो गई कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. ओके, घर में ऐसी क्या बात है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. अब बहुत लोग कहेंगे कि घर तो बहुत महंगे होते हैं, तो पुअर मैन कैसे अफोर्ड कर सकता है. घर महंगे कोई नेचुरल बात नहीं है, कोई इनएविटेबल बात नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड सप्लाई इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मार्केट. सप्लाई जो आती है मार्केट में, इट इज़ अंडर अ पॉलिसी. अगर पॉलिसी उसको अलाउ ही नहीं करेगी तो मार्केट में सप्लाई कहाँ से आएगी, और सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस बहुत हाई होगी, और क्योंकि प्राइस बहुत हाई है, वो अनअफोर्डेबल हो जाता है बहुत से लोगों के लिए. फिर वो रहते हैं सम्स में, वो भी अपॉलोजेटिक होते हैं कि हमको वो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक बेगिंग, हमको यहाँ रहने दो, हम गरीब हैं. इनफैक्ट दे कुड आस्क अनदर क्वेश्चन कि ये इतने घर महंगे कैसे हो गए. हाँ, और इसमें ये नहीं है कि, थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर दूं, कि ऐसा नहीं है कि बिल्डर्स इसको डेलिबरेटली कर रहे हैं या ब्रोकर्स कर रहे हैं. कुछ हद तक रोल होता है, बट ऑल इंडिया में इतने सिटीज़ में इतने पैमाने पर इनका आपस में कंपटीशन होता है. तो दैट कैनॉट बी द मेन रीज़न, द सोल रीज़न, द रूट कॉज. द रूट कॉज इज़ पॉलिसी. और जहाँ तक पॉलिसी की बात आती है, अभी भी आप देखोगे तो डिबेट इस पे चल रहा है बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, बिटवीन वेरियस पॉलिटिशियंस, कि यहाँ पे बुलडोज़र चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था. वो रूट पे नहीं जा रहे हैं कि स्लम्स क्यों हैं, एग्जैक्टली. और एटलीस्ट इतने लार्ज स्केल पे क्यों हैं. मैं नहीं कहता कि स्लम्स कंप्लीटली चले जाएंगे अगर आप पॉलिसी चेंज कर दोगे, लेकिन 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन शुड लिव इन स्लम्स. That is not done. This is not some law of economics. This is an outcome of a policy. अब पॉलिसी में ये नहीं है कि एक दिन किसी ने डेलिबरेटली ये पॉलिसी बना दी, ऐसा नहीं है. पॉलिसी का भी एक लंबी हिस्ट्री है. एक पहले एक पॉलिसी थी, बट पॉपुलेशन बढ़ी, सिटीज़ बड़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उसके साथ वो पॉलिसी अडेप्ट नहीं हुई है, उसके साथ वो फ्लेक्सिबल नहीं हुई है, उसके साथ वो एक्सपैंड नहीं हुई है. तो विद द रिजल्ट के वो पुरानी कहानी चलती जा रही है. और वो अगर आप किसी वजह से सप्लाई को लिमिट करोगे और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इट विल शो अप इन हाई प्राइसेस, जो हम देखते हैं. आप साउथ दिल्ली में प्राइसेस देख लो, बहुत हाई हैं. सेंट्रल दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो, वो तो दे आर अनअफोर्डेबल इवन फॉर द रिच. और गुड़गांव के कुछ पार्ट्स देख लो, वहाँ भी इट इज़ वेरी हाई. सो इट शोज अप आइदर इन हाई प्राइस, और देन इट शोज अप इन पीपल लिविंग इन स्लम्स जो है. सो इस पॉलिसी का एक रूट कॉज है और इस पॉलिसी का एक सोल्यूशन है, बट वो वहाँ पे बात नहीं हो रही है. सर, ये जो पॉलिसी का रूट कॉज है और पॉलिसी का सॉल्यूशन है, अब जैसे आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया,
हाउसिंग पॉलिसी की को आपने रेस्ट्रिक्टिव बताया, कैन वी डिफाइन वो रेस्ट्रिक्टिव कैसे है? सो वो ऐसा है कि रिस्ट्रिक्टिव नेचर जो होता है हर एक इंडस्ट्री में अलग फॉर्म लेता है. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपने मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस नहीं दिया था, तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो इट इज़ अ मोर विजिबल थिंग. अब आप आ जाओ हाउसिंग पे. सो यहाँ पर इट डजंट टेक दैट फॉर्म बिकॉज इट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री का नेचर ही डिफरेंट है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का. तो यहाँ क्या फॉर्म लेता है, जो फॉर्म यहाँ लेता है वो है कि 1947 के बाद हमारे बहुत ही कम नए शहर बने हैं. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस चंडीगढ़ बना था, अभी कुछ साल पहले गिफ्ट सिटी बना है, 30 साल पहले या उससे थोड़ा टाइम पहले गुरुग्राम, तब गुड़गांव कहते थे, वो शुरू हुआ था. तो ये जो सप्लाई है, देर आर टू पार्ट्स टू द सप्लाई. वन इज़ जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनमें सप्लाई बढ़ाने की, और जो अभी डिबेट्स में बात होती है वो इसी पे बात होती है कि सप्लाई विद इन दिल्ली कैसे बढ़ाओगे. वो कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग कर दो या आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी में बना दो. बट दिस इज़ अ वेरी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ सप्लाई एक्सपेंशन. जस्ट एज यू नीड टू एक्सपैंड विद इन अ सिटी, मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, आपके 70-75 साल की हिस्ट्री हो गई, तो उसमें in a developing country like India, you need more and more cities, or at least the expansion of the small towns. Now, अब वो कुछ जो स्मॉल टाउन्स हैं वो एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं, नए शहर बन नहीं रहे हैं. तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में फिर क्या नज़र आते हैं? स्लम्स. तो स्लम्स आर इनएविटेबल प्रोवाइडेड यू डोंट सेट अप न्यू सिटीज़. अगर आप करोगे उस डायरेक्शन में काम, तो यहाँ स्लम्स नहीं होंगे. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ स्टैंडिंग आउट in terms of the population of urban population living in slums. So it takes a different form of restrictions on supply. So अब उसका, तो let me get a little more specific. सो इंडिया में जो टोटल लैंड है उसमें इफ़ यू ब्रॉडली स्पीकिंग डिवाइड लैंड बिटवीन रूरल यूज़ एंड अर्बन यूज़, तो देर इज़ वेरी लिटिल अर्बन लैंड, मोस्ट ऑफ इट इज़ रूरल लैंड, मीनिंग अप्रूव्ड लैंड इन अर्बन एरियाज़. तो आपने अगर लैंड को अप्रूव नहीं किया फॉर यूज़ इन अर्बन इंडिया, तो सप्लाई कहाँ से बढ़ेगी? वन. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर है. अब हम सबको पता है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस गवर्नमेंट कि इतना कुछ किया है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. बट उसमें आप एक चीज़ का ध्यान दो कि ये जो स्पेंडिंग है इट इज़ मेनली ऑन हाईवेज, इट टू सम एक्सटेंट रेलवेज एंड सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स जैसे हैं, इन चीज़ों पे हो रहा है. This infrastructure spending is not going into building of new cities. Infrastructure spending is not going into extensions of small towns. वो नहीं हो रहा है. तो as far as housing supply goes, there is hardly any infrastructure spending. Sir, what should be the infrastructure spending for increasing the housing supply? हाँ, so जो अभी सपोज आप 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हो ऑन हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज, तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें से 10%, 20% आप कम कर दो हाईवेज पर, और ये हाउसिंग सप्लाई पे कर दो. हाउसिंग सप्लाई पे मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट घर बनाए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपको एक बेसिक लेआउट होता है, प्लानिंग होती है, आप इतना ही कर दो कि इट नीड नॉट बी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. इवन इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी, you identify some area in, let's say, each state, and this could be between the center and states or just by the state government at whichever level. So वहाँ पर you identify a rural area कि यहाँ पर एक शहर बन सकता है, उसका एक मास्टर प्लान बना दो. Now this kind of planning also requires a lot of work. By the way, on one hand Niti Aayog does detailed planning, Ministry of Finance also does detailed planning on various sectors. कहाँ पे हाईवे बने,
कहाँ पे पोर्ट्स ठीक हों, कहाँ पे एयरपोर्ट्स ठीक हों. बट देयर इज़ अनदर काइंड जिसके बारे में मास्टर प्लान्स, न्यू सिटीज़, एक्सटेंशंस ऑफ स्मॉल सिटीज़ वहाँ पे नहीं हो रहा है. नाउ दैट call it infrastructure or call it planning, that is one part. Having identified the area, having made a master plan, उसके बाद जहाँ वो स्मॉलर इनसाइड रोड्स हैं, ये तो हाईवेज तो बड़े बड़े हैं टू कनेक्ट वन सिटी विद अनदर, बट विद इन अ सिटी जो पार्क्स बनाने हैं, जो सीवर लाइंस डालनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स डालनी हैं, जो वट एवर हॉस्पिटल्स या एजुकेशन के लिए जो भी कुछ करना है, तो वो सब करने की ज़रूरत है. तो वो इंफ्रा स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट नील है. जब आपकी स्पेंडिंग उस डायरेक्शन में नील होगी तो then it is not surprising कि 50% of the urban population in India lives in slums and another 10, 15, 20% lives in unauthorized colonies or unauthorized constructions. It takes various forms. So, sir, following this, I just want to ask कि क्या करप्शन की वजह से वो पॉलिसी नहीं आई या पॉलिसी की वजह से करप्शन है? पॉलिसी की वजह से करप्शन है, वो दूसरी तरफ भी है, बट मेन जो है, जो जिससे मैंने Higher बात शुरू की weightage. थी कि करप्शन इटसेल्फ इज एन आउटकम Of wrong policy. ऑफ रॉन्ग पॉलिसी. मैं इसीलिए कह रहा था कि करप्शन तो, ब्लैक मनी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होता था, लेकिन वो चला गया. तो यहाँ है अभी भी. तो इवन हरासमेंट, बिकॉज आपने एक पावर दी हुई है एक ऑफिशियल को, तो अब वो पॉलिटिशियंस लेवल पे. तो बाय द वे आई मस्ट से जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे अंडरस्टैंड कि लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ. तो वो दे से लेट देम बी, but that is not a solution. Yeah, exactly. That is not a solution. At least it's not a long term solution. Sir, demolition is a solution. डिमोलिशन के साथ कुछ अरेंजमेंट कर दो, बट Cushion provide कर दो. कुछ एक कुशन प्रोवाइड कर दो, बट इवन दैट इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. अब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं आप बड़ी लंबी बात कर रहे हो, दूर की बात कर रहे हो. तो मैं कहता हूँ दूर की मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सिलसिला 50 साल से चल रहा है. सीड तो अभी डालनी पड़ेगी. हाँ, वो तो कभी तो आपको डालनी पड़ेगी. आप मुझे कह रहे हो कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आएगा. यही बात आज से 50 साल पहले भी किसी ने कही होगी कि लेट अस डू दिस, तब भी आपने कहा होगा कि आप लॉन्ग टर्म बात कर रहे हो. तब उसकी बात सुन ली होती लॉन्ग टर्म की, तो 50 साल तक नहीं चलता, वो सिर्फ 5-10 साल तक चलता. तो वो चाइनीज सेइंग है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स begins with the first step. So you have to begin there. So sir, अभी to begin now, what do you think? What is the solution? अभी वो सीड क्या है जो डालनी ज़रूरी है, जो शायद next 50 years में we'll have a country which is slum free. So 50 years की ज़रूरत नहीं है, इतना लॉन्ग टर्म बात मैं नहीं कर रहा हूँ. ये हालत इतनी ख़राब नहीं है. So first allocation of land, planning of land use for the whole country. There's a need to shift from rural use to urban use. वो जब रूरल यूज़ कम होगा तो वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी कम होगी, बट वो परसेंटेज में बहुत कम होगा, बिकॉज एज इट इज़ अर्बन लैंड बहुत बहुत कम है. तो अगर आप उसको 50% भी बढ़ा दोगे, इवन 100% बढ़ा दोगे, तो इतना कोई आफत नहीं आएगी कुछ भी ऑन द रूरल पार्ट. सो दैट इज़ लैंड यूज़. द अदर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, that is too focused on highways, and within highways the focus is on world class highways. Now it is good to be aspirational and it's nice to see that we want world class highways, but बहुत imbalance हो जाता है. अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं ऑन वन हैंड और आप शहर पहुंचो, वहाँ 50% पॉपुलेशन स्लम्स में रह रही है, तो इम्बैलेंस है ना. तो इसमें इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग. एंड अगेन यू डोंट हैव, मैं नहीं कह रहा कि हाईवेज पर 50% कट कर दो, बट 10, 15, 20% जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो करके आप उसको चेंज कर सकते हो. थर्ड,
आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कुछ गवर्नमेंट स्पेंड करे, कुछ यू कैन हैव अ पॉलिसी अंडर विच the private sector companies or even cooperatives can, if they want to, they can participate and they can provide the infrastructure. ये बहुत लोगों को हैरानी होती है कि हाउ कैन द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मैं लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, गुड़गांव जब 1980s में शुरू हुआ था तो रोड, सिविल लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कंपनीज ने किया हुआ है, मेनली डीएलएफ कंपनी, बट अदर कंपनीज ऑल्सो, ये उन्होंने किया हुआ है, एंड द चार्जेस वर पुट ऑन द बायर्स. सो वो जब प्रॉपर्टी परचेज करते थे उसके साथ ही इट वाज कॉल्ड इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, वो करते थे. मेरा कहने का मतलब है कि एट दैट टाइम गुड़गांव में एट दिस इन अर्ली स्टेजेस स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया था, एंड येट द सिटी केम अप. सर वो इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस भी तो बायर्स के ऊपर ही बर्डन जाता है ना फिर. वो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बिकॉज आप ये देखो कि इंटरनल आप एक रोड बना रहे हो तो उस रोड का जो खर्चा है इट विल गेट स्प्रेड ओवर मैनी 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 रेजिडेंट्स हु आर स्टेइंग देयर, प्लॉट ओनर्स, अपार्टमेंट ओनर्स, फ्लोर ओनर्स, the people who are providing hospitals, education, parks, hotels, guest houses, restaurants, shops. So वो सारा spread out हो जाता है, तो पर स्क्वायर फुट या पर स्क्वायर यार्ड वो इतना ज़्यादा नहीं बैठता है. तो मतलब इकोनॉमिक्स की टर्म्स में अगर बोले तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज वेरी लो. No. Incidence, so that's a different concept. Imposition of tax and incidence of tax. तो उसमें बात यह आती है कि suppose the government is imposing a tax on a seller, ओके, बट वो लग रहा है कि सेलर लग क्या रहा है, सेलर ही पे कर रहा है, बट उसका इंसिडेंस इज ऑन द बायर एज वेल. सो दैट इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन बिटवीन इम्पोजिशन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. यहाँ मैं वो नहीं कह रहा, मैं यहाँ लुक एट इट लाइक फिक्स्ड चार्जेस, मीन फिक्स्ड कॉस्ट गेटिंग स्प्रेड ओवर मेनी पीपल. सो हम यूजुअली इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट ऑफ अ सेलर की बात करते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं रोड की, जिसकी एक फिक्स कॉस्ट गेट स्प्रेड ओवर मैनी रेजिडेंट्स, मैनी शॉपकीपर्स, मैनी होटल्स, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा. तो पर रेजिडेंट या पर ऑक्यूपायर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है. सो आई मेंशन्ड लैंड यूज़, government infrastructure spending, allocation between highways and infrastructure for housing or new cities or small towns. Third, a policy framework under which private companies and even cooperatives can provide the infrastructure and charge the residents, each of whom will not have to pay much. Okay. Now, fourth, जो real estate development है, it is not just a technical engineering job. तो ये बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स या इवन नॉर्मल टाउन्स इन्होंने कोशिश की है बनाने की, एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ इट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग जगह पे, बट वो ज़्यादा चले नहीं है. रीजन सर? हाँ, उसका रीज़न ये है, एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन देयर. उसका ये है कि गवर्नमेंट का जो मेन रोल है और जो गवर्नमेंट का कैपेसिटी भी है और इंक्लिनेशन है, दैट इज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रॉडली स्पीकिंग, जो उसके वेरियस फॉर्म्स हो जाते हैं. बट इट इज़ नॉट, फर्स्टली एज वी नो, running a business is not something that the government should do unless there are very good reasons for it to take that up. उसी से एक related चीज़ है, which is जो urbanization और real estate development होती है, उसमें आप suppose एक नया शहर बना रहे हो या एक city को extend कर रहे हो. Now, if you treat it as an engineering job, as a technical job, or as a public administration job, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ पे जाके इंजीनियर्स को, लेबर को, मटेरियल्स को भिजवा के रोड लगवा दी, सिविल लाइंस बना दी, सारा आपने प्रोवाइड कर दिया. फिर उसके बाद आप कहते हो कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता. क्यों नहीं आना चाहता? हाँ, वो क्यों नहीं आना चाहता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग आना नहीं चाहते. लोग
अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, लोग स्लम्स में रह रहे हैं, लोग एक्सपेंसिव हाउसिंग में रह रहे हैं इन सिटीज़। वो आना नहीं चाहेंगे इन अ न्यू प्लेस वेयर द प्राइसेस आर वेरी लो। बात नहीं बैठती। बट इट इज़ ट्रू कि वो नहीं आते हैं, नहीं आना चाहते। वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आपने सिर्फ, जिसको मैं कह रहा था, टेक्निकल जॉब, इंजीनियरिंग जॉब किया है, आपने वो इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं किया है। you have to ensure that a school opens meaningfully, that a market opens meaningfully, a hospital or a clinic opens meaningfully. गुरुग्राम की सक्सेस कहाँ से हुई? Because these private companies, they took it upon themselves कि हम सिर्फ प्लॉट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ घर नहीं बनाएंगे, हम वी विल इंश्योर कि पोस्ट ऑफिस आता है, वी विल इंश्योर कि रेस्टोरेंट्स यहाँ आते हैं, वी विल इंश्योर कि एक ढाबा खुलता है, वी विल इंश्योर कि एक मैकडोनल्ड्स खुलता है। तो वो सारी चीज़ें जब वो इंश्योर करते हैं तब हौसला आता है बायर्स को कि वो कहते हैं कि और भी रेजिडेंट्स आएंगे इसकी वजह से। तो एंड वो एक देखा देखी में भी, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन द सेंस कि आप एक शहर में जाना चाहोगे जहाँ और भी लोग रह रहे हैं ना, आप आइसोलेशन में तो रहोगे नहीं। तो ये मैं हर्ड बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक इकोसिस्टम है, जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट कर नहीं पाती। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि वो आपने क्यों नहीं किया। गवर्नमेंट पुलिस अच्छे से कर ले, जुडिशरी अच्छे से कर ले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे। सो ये बेसिक फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो कमिंग बैक टू दिस अर्बनाइजेशन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ सिटीज़ का इनिशिएटिव लिया है, किया है, और जो चले नहीं हैं वो इसलिए नहीं चले क्योंकि इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो उसमें ये मेरा पॉइंट है कि प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स और इवन पब्लिक सेक्टर रियल एस्टेट डेवलपर्स और कोऑपरेटिव इन वट एवर फॉर्म दे आर, but meaning in a decentralized way, on at their own initiative, at their own level वो करेंगे। So यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा, मार्केटिंग एक टर्म है विच इज़ थोड़ा मिसअंडरस्टूड है। मार्केटिंग से हमको लगता है कि कंपनीज वाले कुछ सेल कर रहे हैं और वो हम एक कंज्यूमर को बेवकूफ़ बना के कुछ बेच रहे हैं उस पर, ऐसा होता है। So there are companies which do that, which is why marketing gets a bad name. But marketing का एक broader social function भी है, and this is particularly true in real estate development. वो ये है कि एक real estate developer ensure करता है, जब वो एक होम बायर के पास जाता है तो उसको एक एश्योरेंस देता है कि और भी होम बायर्स आएंगे, और भी शॉपकीपर्स आएंगे, और भी स्कूल्स आएंगे, कॉलेजेस आएंगे। तो इस तरह से होती है मार्केटिंग। नाम है मार्केटिंग, बट इट इज इन इकोनॉमिक्स टर्म्स इट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट बायर्स, ईच ऑफ whom इज विलिंग टू गो प्रोवाइडेड अदर्स गो। बट वो अब एक बायर पे तो आप छोड़ नहीं सकते कि वो कोऑर्डिनेट करे विद अदर बायर्स, वो अपना काम ही कर ले, अपनी इनकम ही बना ले, वही बहुत है। तो यहाँ पर एक फंक्शन आ जाता है, उसको बिजनेस टर्म्स में मार्केटिंग कहा जाता है, उसको इकोनॉमिक्स टर्म्स में, इन एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट, यू कैन कॉल इट कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट मार्केट मैकेनिज्म भी एक कोऑर्डिनेशन है, मैकेनिज्म कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इट्स अ प्लेस, यू हैव अ सिग्नल इन द प्राइस। एनीवे, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। बट इकोनॉमिक्स में हम कोऑर्डिनेशन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में ये रियल एस्टेट डेवलपर्स करते हैं। तो जब जो पॉलिसी है न्यू सिटीज़ की, जो पॉलिसी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल टाउन्स, दैट पॉलिसी हैज़ टू इन्वॉल्व, encourage, invite these companies, and उससे ये सारा story will change. Of course, Rome was not built in a day, so it is a long-term story, but you have to begin somewhere. Otherwise तो ये मुद्दा every now and then आता रहेगा कि रोड पे ट्रैफिक जैम है, स्लम्स को हटाओ, या वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, स्लम्स को हटाओ, एंड स्लम्स के रेजिडेंट्स का प्रॉब्लम है कि हम कहाँ रहें। वो
they provide you with the cheap labor services in homes, in shops, vegetable selling, fruit selling. सिटी की इतनी सर्विसेज उनसे चलती हैं. सो ये तो है नहीं कि हट सकती हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, फॉर इकोनॉमिक रीजंस, तो वो तो सोल्यूशन है नहीं. बट यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दिस अदर सोल्यूशन. नाउ अब बात यहाँ दिल्ली की हो रही थी कि दिल्ली से शुरू हुआ है, बट फिनोमिनन ऑल इंडिया है, जो हमने फिगर भी दिया ऑल इंडिया का. तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है. तो अब आप अगर स्टेट गवर्नमेंट को मैं बात करूं तो बोलेंगे कि इसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट, ये तो है नहीं कि दिल्ली के अंदर एक और शहर बस सकता है, दिल्ली खुद ही शहर है. बट in coordination with the central government, in coordination with other state governments, and where Niti Aayog is an all India body, Ministry of Finance is an all India body, हाउसिंग मिनिस्ट्री है वो इट्स एन ऑल इंडिया बॉडी. तो वो जैसे जीएसटी भी हुआ है तो इट वाज सेंटर एंड स्टेट. सो मेनी थिंग्स हैपन सेंटर एंड स्टेट. सो दिस आल्सो needs to happen at the center and states, and it needs to begin now so that it starts showing up. Sir, for the existence of slums, there is another story apart from supply of cheap houses, is that job opportunities. लोग माइग्रेट करके इन्हीं क्लस्टर सिटीज़ में जाके स्लम्स में जाके रहते हैं, बिकॉज़ वो बोलते हैं वहाँ पे लैंड तो है हमारे पास, पर वो खेती करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे. तो ज़मीन है पर खाने को पैसा नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि पीपल मूव टू द सिटीज़ और वो स्लम्स में रहते हैं. दे हैव बिग स्पेसेस एट लीस्ट इन देयर रूरल एरियाज. सो आई थिंक देयर इज़, डू यू थिंक, बिकॉज it just came to my mind कि that is also another factor, and job creation, job opportunities, that is another fallback जहाँ इंडिया अभी कर नहीं पा रहा है कुछ अच्छा. So वो aspect related to slums, can you please explore? Yes. I'm very glad you asked this question. So there are two comparisons that you can make. One is कि आप रूरल एरिया में कितना कमा पाते हो और यहाँ सिटी में आके इवन लिविंग इन स्लम्स कितना कमाते हो. एंड देर आर स्टडीज़ विच शो दैट स्लम्स की हालत ख़राब है, इनकी इनकम्स ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ स्टिल बेटर, विच इज़ वाई दे हैव कम, विच इज़ वाई दे स्टे ऑन. बट दैट इज़ वन कंपैरिजन. ओके, बट बात यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा था कि स्लम्स से ये हट के वापस गाँव जाएं. मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा कि नए शहर बसें शुरू हों और जो एग्जिस्टिंग स्मॉल टाउन है वो एक्सटेंड हों. तो जो मूवमेंट है वो जो करंट स्लम्स हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कानपुर और वगैरह वगैरह, तो वो वहाँ से वो शिफ्ट हों ना. इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को आप फोर्स करो, नॉट एट ऑल. बट ये है, ये खबर सब तक पहुँच जाती है कहाँ जॉब्स हैं, कहाँ लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, तो उससे वो शिफ्टिंग होगी. अब आप एक चीज़ और देखो कि हालांकि इनकम इन सिटीज़ इन स्लम्स मे बी बेटर, मे बी नहीं, इट इज़ Cost of living is also high. बट ओवरऑल इट्स स्टिल, नहीं तो वो रहते क्यों चले जाते. बट ऐसा नहीं है कि इनकम यहाँ हाई है. हमने सबने देखे कंडीशन उनकी क्या है. देर आर स्टिल लो इनकम. इट्स जस्ट बेटर देन रूरल एरिया बट इट इज़ लो. तो बात क्या है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सिचुएशन ऑफ लो हाउसिंग, लो मीनिंग लो क्वालिटी हाउसिंग और बैड हाउसिंग और अनहाइजीनिक हाउसिंग, unsafe housing. That is one part of the story. The other part of the story is that the jobs are not good, the incomes are not good. Okay. Now, when you visualize new cities being set up, small towns getting extended meaning वो भी एक नए शहर की बात ही हो गई, तो वहाँ पर not only will the housing be better, it is plausible that even the jobs are better, the incomes are better. Why? Let me elaborate on that. रूरल इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लो है. ऑब्वियसली शहरों में डेंसिटी हाई होती है, रूरल एरिया में डेंसिटी कम होती है. आप खेत देखोगे, गाँव देखोगे, फिर चलते जाओ, कोई रास्ते में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो
काफ़ी देर बाद कोई मिलते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ डेंस एरिया, इट्स नॉट लाइक सिटी. ऑब्वियस बात है, बट उसका एक इम्प्लीकेशन है. उसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब आप when you identify a rural area for setting up a city, when you create a master plan for a city, when you set up infrastructure for that city, when you go in for real estate development in that area, the number of people in that area will be very low compared to the number of jobs you will have. And real estate development वगैरह is a labor intensive, construction industry is labor intensive. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इनको पास जॉब्स ठीक से नहीं है, या कम है, या लो इनकम है, बट वहाँ पर इनफैक्ट देयर इज़ अ नीड फॉर मोर पीपल. तो वो वहाँ डिमांड होगी. जब मास्टर प्लान आपने क्रिएट किया, जब वहाँ बनाना शुरू करोगे, तो वहाँ लोग तो है नहीं, काम कौन करेगा, वेदर एट द वर्कर लेवल और एट द फोरमैन लेवल और द मैनेजर लेवल और वट एवर लेवल. तो वो सारे कहाँ से आएंगे? दे विल कम फ्रॉम दीज सिटीज़ which are densely populated, where the jobs are bad, where the incomes are low. So the solution is not just in the context of housing, it's in the context of livelihood, incomes more now. जब इतने लार्ज स्केल पे, इतने पैमाने पर इतने लोग जाएंगे और इतनी कुछ होगा, तो दैट इज गोइंग टू चेंज द एग्रीगेट जीडीपी ग्रोथ. और अभी हम आए दिन आरबीआई में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, नीति आयोग में, मीडिया में ये बात होती है कि ग्रोथ रेट बढ़ाना है. तो जब वो ग्रोथ रेट बढ़ाने की क्या बात करते हैं? कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लिक्विडिटी बढ़ा दो. उससे क्या होगा? वो तो नॉमिनल वेरिएबल्स के लिए है, वो तो सिक्लिकल एडजस्टमेंट के लिए है, इट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड. फिर किसी को ये बात समझ आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट बात क्या आती है? आई थिंक हमारी भी बात हुई थी कि फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए. बट आप एक बात नोटिस करोगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अब हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं. सो देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. Sir, won't that become a part of fiscal policy? यस एंड नो. सो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अगर आपकी 100 रुपये है ऑन हाईवेज, तो 80 रुपये लेट इट बी ऑन हाईवेज, 20 रुपीज़ आप ये नए शहरों पे कर दो. सो फार इट इज़ फिस्कल पॉलिसी. बट दूसरी बात जो मैंने कही कि गुड़गांव में एक पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज वर गिवन द ग्रीन सिग्नल टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर. उसमें तो गवर्नमेंट ने नहीं खर्चा करा. It was just policy. This is not public money. This is public policy. And it is urbanization policy. It is housing policy. It is real estate policy. It is neither monetary policy nor fiscal policy. Yeah. ये थोड़ा सा फॉल्ट हम टीचर्स का भी है कि रट लगी रहती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एज इफ देयर इज नो अदर पॉलिसी. बट देयर इज अ होल एरिया ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज विद इन दैट which are monetary policy, fiscal policy are in macroeconomics, monetary economics. But जब आप growth economics पे आते हो, development economics पे आते हो, तो वहाँ पे education policy आ गई, health policy आ गई. सर, अगर गुड़गांव का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं हाउसिंग पॉलिसी के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, डू यू थिंक द स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ डन वेरी वेल इन दैट एस्पेक्ट, गिविंग देम दैट स्पेस एंड giving them that opportunity basically to capitalize on the private sector? बिकॉज हरियाणा में अब एक और सिटी आ रही है सर, जींद, पता नहीं रोहतक के आसपास, एंड वहाँ पे भी अगेन स्टेट पॉलिसी सपोर्ट दे रहा है एंड प्राइवेट players are getting in, investing in, and the state has just provided them that space. By saying that, we can say that in this aspect the government of Haryana has done well compared to the governments of the rest of the states of this country. So yes and no. Yes part is obvious from what you are also saying, and Gurgaon is a visible example of the success. So yes. No, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि in the 1980s when this happened, there was a big green signal and push from the central government to the state government to let this happen.
तो सर वो और स्टेट्स के लिए क्यों नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? वो दिल्ली के एडजॉइनिंग था एंड कुछ कंपनीज ने इनिशिएटिव लिया था गुड़गांव में. So I will add quickly that Gurgaon was easier Because of proximity to because Delhi. of proximity to Delhi. Yes, that is true. But all that it means is that it will be relatively more difficult for other Hmm. places in other states. But this is not to say कि नहीं हो सकता या इसकी ज़रूरत नहीं है. Let's get back to that figure. 50% of the urban population lives in slums in India. Another 10 to 20% is in unauthorized constructions in one form or another. So it just shows how far we need to go. इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है. वन पार्ट ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई मेंशन्ड ऑलरेडी. वो ये था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउसिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट रेजिंग द ग्रोथ रेट फ्रॉम 6.5 टू 8+. उसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट कैन बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एक और चीज़ है विच इज़ एजुकेशन. जब एजुकेशन की बात होती है ना तो ज़्यादातर बात ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पेंडिंग इनफ, state government is not spending enough, and they are not running the government schools well Sir, enough. we've done a study on this expenditure. तो expenditure तो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा है compared to all the countries. तो expenditure is not a problem. I think the quality of expenditure is the problem. So we are not differing on that then. Okay. मैं कुछ कह रहा था कि कुछ लोगों का है कि स्पेंडिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए. So मैं ये कह रहा हूँ कि ओके और ज़्यादा होनी चाहिए, बट other policies are also needed, which is what you were also talking about. Now I'll get more specific in the context of slums. और वो वहाँ पे कहानी ये है कि अगर कोई स्लम्स में रहता है, उसके छोटे बच्चे हैं, अगर आपने स्कूल भी प्रोवाइड कर दिया तो एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाने से तो होती नहीं है. आप ये भी एज्यूम कर लो कि स्कूल इज़ वेल रन, वो टीचर अच्छे से पढ़ा भी रहा है, बट वो घर आएगा या आएगी, वो छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो घर आके एक जगह ही नहीं है पढ़ने की, Exactly, sir. एटमॉस्फेयर ही नहीं है पढ़ने का. ये बात तो छोड़ दो कि उसके पास टेबल चेयर नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात हो गई. जो स्लम्स हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द करंट स्लम dwellers housing policy, and it's not just a question of inconvenience for the cars moving in that area or waterlogging. The children who are living there, there is an entire generation which will not do well. Why? Because they live living in slums. सो आप क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग या उसका मिक्स, तो उसमें एक चीज़ मैं कर दूँ जो आपने कहा कि शॉर्ट रन पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी. सिंस दिस इज़ मोर गोइंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी. ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी कुछ नहीं हो सकती. शॉर्ट टर्म पॉलिसी वो ये हो सकती है एटलीस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि स्कूल्स में लाइब्रेरीज और रीडिंग हॉल्स थोड़े जेनरस हों, ताकि छोटे बच्चे वो स्कूल अटेंड कर लिया, उसके बाद उसको होमवर्क करना है या उसको पढ़ना है तो वो वापस चला जाए उस स्कूल में नहीं, उसके सिर्फ रीडिंग हॉल में. मैं आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ जगहों में, नॉट इन स्कूल लेवल बट यूनिवर्सिटी लेवल पर है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU में लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, बट अपार्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी देर इज़ अ सेपरेट रीडिंग हॉल विच इज़ ह्यूज. अब उस रीडिंग हॉल में यू कैन गेट योर ओन बुक्स, यू कैन गेट योर ओन पेपर्स. तो वो भी नहीं है कि कोई अंदर आते जाते आपको चेक करता है कि आप कहीं लाइब्रेरी की बुक ले गए, बिकॉज इट्स आउटसाइड ऑफ दैट लाइब्रेरी. तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी क्या है कि हॉस्टल रूम्स आर स्मॉल, दे शेयर्ड. कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इवन इन अ गुड यूनिवर्सिटी लाइक JNU. तो दैट रीडिंग हॉल does a wonderful job. I know it's partly used for civil service examination, etc. बट उस बात को छोड़ दो, इसका यूज़ पॉजिटिव यूज़ भी है. जो यूज़ ये कुछ IITs में भी है जो मुझे ध्यान आ रहा है, सेपरेट रीडिंग हॉल्स. तो वहाँ पे डे स्कॉलर्स भी पढ़ सकते हैं.
ये चीज़ जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी ये ज़रूरत है, तो कि जो एटलीस्ट जिनका घर ठीक नहीं है वो पढ़ सकें ठीक से, वहाँ पे काम कर सकें, होमवर्क कर सकें, उसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहें तो. सो दिस इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद हाउसिंग, But it बट talks about the ecosystem. इकोसिस्टम कि एटलीस्ट यू आर नॉट अफेक्टिंग द किड्स ऑफ द स्लम ड्वेलर्स. स्लम ड्वेलर की तो उसकी तो लाइफ जो होनी थी हो गई, बट एटलीस्ट उसके Next बच्चों generation. की, उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन की, वहाँ वो शुरुआत तो खराब नहीं हो. I remembered somebody from my school. I was talking about this with my brother. हमारे टाउन से लेके स्कूल तक का 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था सर. तो हम बस से जाते थे. तो बीच में एक गांव आता था. उस गांव का सिर्फ एक स्टूडेंट था जो हमारे स्कूल में आता था. सो द पेरेंट इज स्पेंडिंग ऑन हिज एजुकेशन. बट आफ्टर आई थिंक 10th स्टैंडर्ड और प्रोबेबली उसने 12th किया या नहीं पता नहीं, ही couldn't do anything बिकॉज वो स्कूल से वापस उसी गांव में जाता था. तो आई थिंक ecosystem played a very big role. You can't fight the system. Yes. So that was a very big factor. So the parents had huge aspirations कि वो कुछ अच्छा कर लेगा जो शायद वो नहीं कर पाए, बट वो ecosystem ने उसको भी नीचे पुल कर दिया. हाँ जी. बट आपने एक वर्ड यूज़ किया सिस्टम. I'll come back to housing, which is anyway our main issue, slums and unauthorized constructions. ये एक पूरा सिस्टम बन गया है. उस सिस्टम में क्या है कि इकोनॉमिक्स टर्म्स में कहूँ या फिजिक्स टर्म्स में इक्विलिब्रियम है. वो जहाँ है वहीं है. उसमें इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें पॉलिसी है, उसमें हरासमेंट है, उसमें करप्शन है, उसमें सबमिशन है ऑफ द स्लम ड्वेलर्स. ये जो लोग हैं, इट इज़ नॉट गुड इन अनदर सेंस. स्लम ड्वेलर्स डरे हुए लोग हैं, बिकॉज वो किसी से कुछ कह नहीं सकते. किसी को कुछ कहा तो वो थ्रेट रहता है कि ये इंस्पेक्टर कुछ कर देगा, या ये रेजिडेंट नेबरहुड वाले कुछ कर देंगे, या गाड़ी में जो चल रहे हैं वो कुछ कर देंगे. एंड देर इज़ अ सिमिलर सिचुएशन विद अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पीपल. जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी इस एप्रीहेंशन, फियर, एंग्जाइटी, टेंशन में रहते हैं. सो जो मैं कह रहा था, एक सिस्टम, वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, सप्लाई कम है, लीगल सप्लाई कम है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, देयरफॉर इलीगल है, देयरफॉर स्कोप फॉर एन इंस्पेक्टर फॉर हरासमेंट, फॉर कलेक्टिंग मनी, एंड ऑल्सो फॉर पॉलिटिशियंस. अब वो पॉलिटिशियंस को भी आता है कि वो बात समझते हैं कि सिटी इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, सो दे आर अंडर प्रेशर के स्लम्स को हटाया जाए, डिमोलिश किया जाए, कम किया जाए. बट फिर उनको ये भी बात समझ आती है कि ये लोग कहाँ रहेंगे, और यही हमारा वोट बैंक है. वो ये वोट बैंक भी है. सो ह्यूमैनिटेरियन रीज़न भी है, पॉलिटिकल रीज़न भी है. अब तो क्या है कि इट्स अ पॉलिसी ऑफ स्टेटस को. मैं जो बात कर रहा था, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग सप्लाई. दिस इज़ अ पॉलिसी ऑफ स्टेटस को, जिसमें ये चलते जा रहा है. ये सिस्टम है. यू कैन इवन कॉल इट अ पैरेलल इकोनॉमी. पैरेलल इकोनॉमी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लैक मनी. देयर इज अ वाइट मनी इकोनॉमी, देयर इज अ ब्लैक मनी इकोनॉमी, एंड दे रन पैरेलल. पैरेलल इन द सेंस के दे आर टुगेदर, साथ साथ चलते हैं. थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दूसरे के साथ भी मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंटरसेक्ट नहीं करते. ये हाउसिंग में देयर इज़ अ पैरेलल हाउसिंग. वन इज़ लीगल हाउसिंग, द अदर इज़ इलीगल हाउसिंग. और यहाँ पे एक बाइनरी भी नहीं है कि दिस इज़ लीगल, दिस इज़ इलीगल. देयर इज़ अ कंटिन्यूम. और वो कंटिन्यूम में ये है कि कुछ कंप्लीटली इलीगल हैं, कुछ कंप्लीटली लीगल हैं, और बीच में किसी ने कुछ वायलेट किया हुआ है, किसी ने कुछ वायलेट किया हुआ है या करना पड़ा है. तो ये ग्रे एरिया है जो चलता रहता है. मैं काफ़ी बार कहता हूँ, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ एम्बिग्विटी. इज़ इट लीगल, इज़ इट इलीगल, इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग. ये
बहुत सारी कन्फ्यूजन है, एंड द कन्फ्यूजन इज बिकॉज ऑफ अ पॉलिसी ऑफ स्टेटस को. You need to get out of that policy of status quo and move to a policy of expanding supply. सर देर इज़ वन मोर साइड टू इट जो काफ़ी रील्स में अभी ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि people say that even if the government tries to bring them out of the slums, they want to stay in the slums. कुछ सही है, कुछ एग्जैजरेटेड है. जो सही पार्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ है, आई थिंक अशोक विहार में दिल्ली में ये हुआ है. हाई राइज फ्लैट्स बने थे, एंड इफ आई एम not mistaken, the Prime Minister himself inaugurated that, and it was a big event कि slum dwellers को वो फ्लैट्स मिले हैं. अब वहाँ क्या है, वो जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुए तो पीपल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बट वो हाई राइज हैं. अब वो लिफ्ट यूज़ होती है, बिजली यूज़ होती है. इट्स वन थिंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कॉन्डोमिनियम्स इन एक्सपेंसिव गुरुग्राम. It's another to talk about electricity bill for lift in flats in Ashok Vihar for slum dwellers. Slum dwellers जो former slum dwellers थे, वो फ्लैट्स में तो आ गए, हाउसिंग तो चेंज हो गई उनकी, बट इनकम्स तो चेंज नहीं हुई ना. तो वो बिजली फॉर लिफ्ट अफोर्डेबिलिटी कहाँ से आएगी? जो पानी वहाँ पे अवेलेबल किया जा रहा है उसका वाटर बिल आएगा, तो वो कैसे अफोर्ड होंगे? तो व्हाट हैपेंड वाज, उस हाई राइज बिल्डिंग में, उस कॉम्प्लेक्स में बुरी हालत है, लिफ्ट नहीं चल रही है, पानी खराब है या अवेलेबल नहीं है, और कूड़ा सब जगह है. सर वो कूड़ा डालने वाले भी तो स्लम के लोग ही हैं ना. यस, बट जैसे बाकी जगहों में रहते हैं तो देयर इज़ एन RWA जिसके चार्जेस हैं, जो पे करते हैं, और एक सिस्टम इन प्लेस है. अब वहाँ पर वो चार्जेस कौन देगा और वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? अगर उतनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होती तो वो वर्कर नहीं होते, वो मैनेजर होते. सो द ये गवर्नमेंट ने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन एक टॉप डाउन सॉल्यूशन जो है ना, वो ग्राउंड रियलिटी से जब थोड़ा सा अलग हो जाता है तो इट डजंट बिकम अ मीनिंगफुल सस्टेनेबल सॉल्यूशन. अब उस कॉन्टेक्स्ट में सपोज किसी का फ्लैट 12th फ्लोर पे है और वो लिफ्ट चल नहीं रही है, 12 मंजिल तक तो आप सीढ़ी पर चढ़ोगे नहीं. अब उस कॉन्टेक्स्ट में इफ़ यू से कि मैं वापस स्लम जाना चाहता हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे तो है. सो और सिटीज़ जो बनते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का एक मेन रोल होता है कि आप एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हो, एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, आप मास्टर प्लान प्रोवाइड करते हो. उसके बाद यू हैव टू लेट द सिटी ग्रो ऑर्गेनिकली, रिच, मिडिल क्लास, पुअर, दिस सर्विस, दैट सर्विस, दिस कंपनी, दैट कंपनी. वहाँ पे टॉप डाउन सोल्यूशन नहीं हो सकता, बॉटम्स अप. हाँ, तो उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, एवोल्यूशन होती है, हल निकलते हैं. सो ये कुछ वीकनेसेस वहाँ की हैं, और कुछ एग्जैजरेशंस हैं कि स्लम डलर तो होते ही ऐसे हैं. और दूसरी तरफ फिर वो आ जाता है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग तो होते ही ऐसे हैं. अब ये स्टीरियोटाइप्स हैं. नाइस. आई थिंक सर हमने रूट कॉज बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है फ्रॉम ऑल द एंगल्स, है ना. बट डू यू थिंक दिस कैन गेट इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री? व्हाई नॉट? क्यों, किस बात पे डाउट लग रहा है आपको? इंडिया में कितने चेंजेस आए. ओके, मैं आपको 1947 में ही ले लो. नो पुअर कंट्री हैड डेमोक्रेसी. वी स्टार्टेड विद डेमोक्रेसी. हमारे पास वोटर्स लिस्ट तक नहीं थी, हमने वो किया. ओके, उसके बाद इंडिया वाज अ पुअर कंट्री, वहाँ पे प्लानिंग कमीशन बना. थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो अलग बात है, बट IITs बनी. कौन से पुअर कंट्रीज में IITs थी? 1960s, मिडल 60s, लेट 60s तक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. हाँ, कितना कुछ हुआ है. डेमोक्रेसी
सस्टेन हो गई। उसके बाद जम टू मैनी ईयर्स लेटर लिबरलाइजेशन हुई। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, जहाँ जहाँ पॉलिसीज चेंज हुई वहाँ वहाँ चेंज आते गया। तो आ- अब आप ये कह सकते हो कि पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर पॉलिसी चेंज हुई तो आउटकम चेंज होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। बट क्वेश्चन देन ये है कि पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी। सो इसमें भी एक चीज़ और है। ये बहुत लोगों का मानना है कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो क्यों आने देंगे, सप्लाई को बढ़ने देंगे। विच इज़ ट्रू, देर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, सप्लाई को बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैंने पहले भी सुनी थी 1980s में, जब वो लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी। वो कहते थे इतने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लाइसेंस हैं, वो क्यों लिबरलाइजेशन होने देंगे, गवर्नमेंट ही वो कंट्रोल करते हैं। बट लिबरलाइजेशन हुई, क्या हुआ उसके बाद, देयर वाज अनदर सेट ऑफ इंडस्ट्रीज व्हिच केम इन। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत एग्जैजरेट होते हैं इसमें। तो जॉन मेनार्ड केन्स की बहुत फेमस लाइंस हैं, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पे। तो उनका था कि इट इज़ नॉट मेनली द वेस्टेड इंटरेस्ट दैट आर अ मेंटल दैट आर एन ऑब्स्टिकल टू चेंज। द मेन ऑब्स्टिकल इज माइंडसेट, इट इज़ कन्वेंशनल विजडम, इट इज़ जो सोच है वो ये है। हमने सब ने देख रखा है, स्लम्स होते थे, हैं, रहेंगे। नो, ये कोई लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स होता तो हर एक कंट्री में स्लम्स होते। Sir, this is related to his concept of animal spirits. नो नो, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो ही वाज कमिंग अप विद अ न्यू थ्योरी। तो जब पूरी बुक उन्होंने लिख दी, फिर उसके बाद यही सवाल उठा कि गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेगी, सेंट्रल बैंक स्टेबलाइज करेगी, तो इसको कोई होने देगा? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो वो he was making a more general point. It was not just about macro policy. So he said कि vested interests are exaggerated. उनका पावर होता है, वो ऑब्स्टिकल भी क्रिएट करते हैं, बट जो मेन ऑब्स्टिकल आता है ना, इट इज़ अबाउट माइंडसेट। अगर ये बात जो लोग अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं उनको बात ये समझ आ जाए कि सप्लाई बढ़ सकती है, अगर पॉलिटिशियंस को, एमपीज को, एमएलएस को, काउंसलर्स को, टीचर्स को, मीडिया में जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, शॉपकीपर्स को, इन सबको ये बात थोड़ी समझ आने लगे कि सप्लाई बढ़ सकती है, तो दिस इज़ अ ह्यूज पावर ग्रुप, इज़ अ ह्यूज वोट बैंक इफ यू लाइक, देयर इज़ अ वॉइस हियर विच इज़ कंसर्न्ड अबाउट सप्लाई। तो उसके सामने ये चार रेगुलेटर्स या चार बिल्डर्स या जो एक्चुअली या कोई सम क्लार्क्स और सम ऑफिसर्स, उनकी पावर कुछ नहीं है। फिर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, वो भी दे थ्राइव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेंटल मेकअप। एक माइंडसेट चल रहा होता है जिसका वो बेनिफिट उठा पाते हैं। सो चेंज जो मेन है वो माइंडसेट और कन्वेंशनल विजडम का है। इट इज़ द पावर ऑफ आइडियाज। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द सोर्स इज कि वंस द माइंडसेट चेंजेस दे विल डिमांड थिंग्स एंड देन सप्लाई विल इंक्रीज एंड देन इवेंचुअली स्लम्स कैन रिड्यूस, यस, है ना? यू कैन पुट इट लाइक दैट। बट उसमें थोड़ा सा मैं क्वालिफाई कर दूंगा कि 1991 की लिबरलाइजेशन हुई थी, तो इट इज़ नॉट के सर उस टाइम तो हम बिल्कुल नीड में ही थे बिकॉज बैंकरप्ट सिचुएशन थी, वो भी डिमांड ही आई थी एक तरह से डिफरेंट फॉर्म में, हाँ, बट वो मजबूरी में आई थी। यू आर राइट। बट वो इट इज़ नॉट के पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी स्ट्रीट्स पे कि हमको लिबरलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, वो नहीं था। बट वो स्ट्रीट्स पे नहीं था, बट उनके माइंड में था कि स्कूटर जल्दी मिलना चाहिए, कार जल्दी मिलनी चाहिए, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो, कपड़े ठीक से मिलें। सो ये सब सपोर्ट फॉर दैट पॉलिसी वाज देयर, विच इज़ वाई जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो ये कुछ लोगों का डर था
कि अनाउंस होगी तो इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उसको रोकेंगे। वो रोकेंगे क्या? 91 की पॉलिसी वाज वेलकम्ड बाय पीपल, बाय द बल्क ऑफ द पीपल। वो तो बहुत छोटी माइनॉरिटी थी विच वर ट्राइंग टू क्रिएट। सर ये हाउसिंग में भी सिमिलर ही एप्लीकेबल होता है, होगा मेजॉरिटी के लिए भाई Absolutely, absolutely, absolutely. There are, India is a young country. Okay, तो जो घर की डिमांड है बाय यंगर लॉट एंड न्यूक्लियराइजेशन भी हो रही है, दैट इज एडिंग टू इट। जहाँ न्यूक्लियराइजेशन नहीं भी है, जहाँ लोग इकट्ठे भी रहते हैं, तो वहाँ भी बात है कि बड़े घर की डिमांड है, ख्वाहिश है। अभी तो माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हाउसिंग इतनी एक्सपेंसिव है, हाउ कैन यू थिंक ऑफ अ बिग हाउस? Why not? You think of a big house because India has land, India has cement, India has steel, India has labor. You have everything that is needed for a big house. खामखा छोटे घर में रह रहे हो, खामखा एक्सपेंसिव हाउस में रह रहे हो, खामखा स्लम्स में रह रहे हो। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में क्यों रहो? उसको लीगलाइज नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको रेगुलराइज कर दो, उनको ऑथराइज कर दो, लीगलाइज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जेन्युइन इंक्रीज कर दो सप्लाई, ताकि ज़रूरत ही ना पड़े अनऑथराइज्ड की। ये दो चीज़ों में फ़र्क है। यस सर, बहुत बड़ा फ़र्क है। सो सर दिस वाज अ ग्रेट डिस्कशन। आई होप यहाँ से मैसेज जाके और वो माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाए, बिकॉज देन इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much for inviting me. It's good to be here. थैंक यू सर।